गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस विद उमर सर। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ एम उमर खान फ्रॉम मोतिहारी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ मॉडल्स. This is the first lecture of models. Now I am going to start my lecture with some inspirational message to you. Okay, then come on the point. First of all, we shall understand the definition of models. Introduction of models. Can, could. Can सकना है, could सकना था. Can. It is used to express, to show ability or request. While could is the past form of can. It is used to express past ability, suggestion, future possibility. May, might. सकना है, सकना था. May. It is used to express permission, a future possibility. While might is the past form of may. It is used to express present or future possibility. Must, are to, must. It is used to express the necessity or the obligations, are to. It is used to express what's right and correct. Shall. It is used to express offer or suggestion. Should is the past form of shall. It is used to express advice or uncertain prediction. Will. It is used to express willingness, certain prediction or promise. Would is the past form of will. It is used to express request, invitation or making arrangements. Modal auxiliary verbs. Definition of modals. Basically, modals are auxiliary verb that express the mode of action denoted by the main verb. He can do this work, she may pass the exam, they would appear in the party. Uses of models. The uses of these models are as given below. Can is used in the following ways to express ability or power. He can read this language. To express permission, you can eat this chocolate. May, could is the past form of can. Could is used in the following ways to show power or ability in past. She could dance well in youth. To show possibility in past, she could buy a pen if she had money. To make a polite request, could you help me now? To show condition, if we had got up earlier, we could have completed this. May is used in the following ways to express permission, possibility, permission like this. May I come in? May I go there? May I do this? Possibility. It may rain heavily. It may rain today. Like this. To express wish. May you live long. Prayer. May God bless you with fortune. To express purpose. She works that she may prosper. We study that we may pass in the examination. Might. If I will talk about the might is the past form of may. Might is used in the following ways to show permission, possibility in the past. The leader told us that we might spend this amount. Permission. I might be sent to the hostel. Possibility to express purpose in the past. He wore a scarf that he might not burn his skin. To make request, if possible, you might bring me a glass of water. Shall
a will. Shall and will are used in the following ways. Shall, first person, subject I, we. Will, second and third person, subject you, he, she, it, they. Shall या will, shall का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है और will का प्रयोग फर्स्ट पर्सन को छोड़ के सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट लाइक यू, ही, सी, इट, दे के साथ में होता है. बट टू शो द एम्फेसिस इट कैन बी इंटरचेंज विद ईच अदर. अगर सेंटेंस पे दबाव पड़ेगा तो आपस में बदल जाएगा. देयरफॉर व्हेन वन नीड्स टू शो डिटर्मिनेशन देन द यूजेस विद द ऑक्सिलरी वुड बी. अगर सेंटेंस पे डिटर्मिनेशन का सेंस क्रिएट होगा तो ये आपस में एक्सचेंज होगा. लाइक दिस, शैल की जगह पे विल होगा और विल की जगह पे शैल होगा. एग्जाम्पल, आई शैल गो, सिंपल फ्यूचर, मैं जाऊंगा. आई विल गो, डिटर्मिनेशन. अगर सेंटेंस सिंपल है, सिंपल एक्शन चाहिए आपको, तो आई के साथ शैल का इस्तेमाल करना है. बट डिटर्मिनेशन होना चाहिए उस सेंटेंस में. अगर डिटर्मिनेशन का सेंस क्रिएट होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जहाँ शैल होगा वहाँ विल होगा, जहाँ विल होगा वहाँ पे शैल होगा. शैल विल आपस में इंटरचेंज कर जाएगा. नेक्स्ट, शुड और ऑट टू. चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में इनको चाहिए बोलते हैं. शुड इज यूज इन द फॉलोइंग वेज. टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस. द पुलिस शुड प्रोटेक्ट अस. यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स. ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को बताने के लिए शुड या ऑट टू का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे द पुलिस शुड प्रोटेक्ट अस. पुलिस को क्या करना चाहिए, हम लोग की सुरक्षा करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स. आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए. टू शो एडवाइस, सजेशन, सलाह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दे शुड फॉलो द रूल्स. वे लोगों को क्या करना चाहिए, रूल्स का पालन करना चाहिए. यू शुड टेक मेडिसिन. आपको दवा लेना चाहिए. टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन. शुड यू लॉस योर मनी, गो टू एटीएम. अगर क्या आपका पैसा खो गया तो एटीएम जाइए. सजेशन, इमेजिनेशन सेंटेंस. शुड यू फॉरगेट पासवर्ड, रीट्राई देन. क्या आप पासवर्ड भूल चुके हैं, ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए. टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, पोलाइट कमांड. शी शुड बी इन द लाइब्रेरी. मस्ट, शुड और मस्ट. बट मस्ट इज द पावरफुल देन शुड. मस्ट जो होता है ना वो शुड से ज़्यादा पावरफुल होता है. मस्ट इज यूज इन द फॉलोइंग वेज. टू शो प्रोविजन, compulsion. You must not touch this. She must feel sorry for you. To show necessity or obligation. Team must win the game. To show the strong advice. Police must take care of emotions of the criminals. Should फॉर्मेलिटी को पे करता है कि आपको सुबह में जगना चाहिए. You should get up in the morning. बट मस्ट जो है वो आपके सेंटेंस को प्रिस्क्राइब करता है, उस पर दबाव देता है, जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा बढ़ाता है. यू मस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग. दैट मीन्स जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवा लेने के लिए बोलेगा तो शुड का इस्तेमाल नहीं करेगा, मस्ट का इस्तेमाल करेगा. अगर वो शुड का इस्तेमाल करेगा तो पेशेंट दवा भी नहीं लेगा. दैट्स वाई. नेक्स्ट, वुड इज यूज इन द फॉलोइंग वेज. टू शो पास्ट हैबिट एंड अनरियल कंडीशन. पुरानी आदत, पिछली आदत को बताने के लिए या अनरियल कंडीशन को बताने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे एग्जांपल, ही वुड राइज एट 5 o'clock. पास्ट हैबिट है ना, वो 5 बजे जगा करता था. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी. क्या लेना पसंद करते थे आप, टी या कॉफ़ी. टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में भी वुड का इस्तेमाल होता है. जैसे वुड यू लेंड मी योर पेन. क्या आप अपना कलम मुझे दे सकते हैं. वुड यू गिव मी योर स्कूटर. क्या आप अपना स्कूटर मुझे दे सकते हैं. नीड इज यूज इन द फॉलोइंग वेज. टू एक्सप्रेस प्रोविजन, ज़रूरत. नीड का मतलब ज़रूरत होता है. सी नीड नॉट यूज दैट कंप्यूटर. अगर कोई चीज़ को मना करना है आपको, सी नीड नॉट यूज दैट कंप्यूटर. उसको उस कंप्यूटर को यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दे नीड नॉट मैनिपुलेट द फाइल्स. टू एक्सप्रेस डाउट, नीड आई गो देयर. नीड वी प्लान इन एडवांस. डेयर, टू एक्सप्रेस अ निगेशन विथ इंट्रोगेशन. डेयर का इस्तेमाल किया जाता है हिम्मत के लिए. टू एक्सप्रेस अ निगेशन विथ इंट्रोगेशंस लाइक दिस. हाउ डेयर यू टू टच माई पेन. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कलम को टच करने का. से डेयर नॉट प्ले टेनिस विथ मी. वो डरती नहीं है टेनिस खेलने के लिए, वो भी मेरे साथ. यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट. बीती हुई आदत को बताने के लिए यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है. सी यूज टू गो टू परफॉर्म इन मूवीज और ड्रामा. आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन 2000
5 2005 में मैं क्रिकेट खेला करता था। बीती हुई आदत को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस अ हैबिट ऑफ पॉजिंग दैट हैज़ इट्स रूट इन द पास्ट, कोई ऐसा आदत जो रूट जो हो, मतलब स्टार्ट उसका पास्ट में हुआ हो, प्रेजेंट में बना हो हैबिट, लेकिन उसकी जो उत्पत्ति है उस हैबिट का, जो स्टार्टिंग है, जो उसका रूट है, वो पास्ट से जुड़ा हुआ है और वह हैबिट अभी भी प्रेजेंट में है, उसको इंडिकेट करने के लिए भी यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। लाइक दिस, माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट यूज टू स्वीट्स। शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक दादाजी जो है वो स्वीट्स नहीं लेते हैं। आई एम यूज टू अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल। Dear students, now this chapter is over. Let us practice the exercises of models. Practice questions and solution. Exercise first. इस वीडियो में मैंने 4 एक्सरसाइज को डाला है, 1 by 1 करके हम सबको समझेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट मीन्स क्वेश्चन फर्स्ट, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट दिस नंबर ए बी सी और डी इन द आंसर्स लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू आर लेट, यू डैश हरी। ये 4 ऑप्शन मैंने दिया, ए बी सी डी। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको सबसे पहले तो आपको नोट्स में इसको लिखना है। लिखने के बाद आंसर को खुद से बनाना है, कौन सा आंसर होगा, विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद आपको जो मैं ऑलरेडी इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ, सॉल्यूशन से मैच कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बैक जाना होगा, या हियर इज इट। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, question number 5, you dash keep the seizures away from the baby, you dash go home if you have completed your work, like this 7 8 9 10. This is the solution of chapter first, 1 to 5 here and 6 to 10 here. And it's time to understand the question number 2. Choose the most suitable answer to fill in the blank, write its number a b c d like this. क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी है आपका। ऑप्शन दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपको सिलेक्ट करना है विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन और अपने आंसर को मैच करना है यहाँ पे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन etc टू फिल इन द ब्लैंक्स। एवरीबडी डैश फुलफिल हिज और हर ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, यहाँ पे खुद आपको ऑप्शन डालना है, लेकिन ऑप्शन क्या होगा ऑलरेडी मैंने इंडिकेट किया क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा। 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉल्यूशन इज हियर। क्वेश्चन पहले खुद से बनाना है, बाद में सॉल्यूशन से मैच करना है। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड question number 4. This is the last question. Use appropriate models of desire, determination, necessity, provision etc to fill in the blanks. यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लेस है, लेकिन कैसे यहाँ पे आंसर आएगा, किस सेंस से, सेंस ऑलरेडी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। डिटर्मिनेशन का सेंस हो, नेसेसिटी हो, प्रोविजन हो, डिज़ायर हो, लाइक दिस। 3 4 7 8 9 10। सॉल्यूशन इज हियर। सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन को मैच कर लेंगे। लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव, टुडे वी विल प्रैक्टिस फॉर्मिंग सेंटेंसेस यूजिंग वेरियस मॉडल्स, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, है ना। कैन सकना है, कुड सकना था, विल गागी गे, वुड पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करेगा, पास्ट हैबिट को इंडिकेट करेगा, शैल फ्यूचर एक्शन, शुड चाहिए, मे सकना, माइट पास्ट फॉर्म है मे का, मस्ट अवश्य चाहिए। Thanks for watching this video. Dear students, if you have any problem then you can contact me on my contact number. Chapter is over. आपका काम ये है कि चैप्टर ओवर हो चुका है, आप अपने नोट्स में इसको फेयर कर लेंगे और फेयर करने के बाद क्या करेंगे कि जितने भी मैंने एक्सरसाइजेस दिया है सारे एक्सरसाइज को खुद से बनाना है और फिर सॉल्यूशन से मैच कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।